CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ में बिल्डिंग बायलॉज का मिसयूज वायलेशन पर जुर्माना, समाधान के नाम पर प्रशासन का आश्वासन पर आश्वासन, तारीख पर तारीख, केस पर केस, नोटिस पर नोटिस। हजारों व्यापारियों की नींद उड़ी हुई है क्योंकि 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 15 लाख भी नहीं, 20 लाख भी नहीं, बल्कि 1 करोड़, 1.5 करोड़, यहां तक कि 6 करोड़ का जुर्माना मिसयूज या वायलेशन के नाम पर ठोका जा रहा है। इसलिए व्यापारियों की समस्याओं का समाधान चंडीगढ़ की धरती पर नहीं बल्कि दिल्ली की सड़कों पर तब समाधान निकलेगा जब चंडीगढ़ से हजारों व्यापारी दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि शहर में अधिकारियों की फौज पिकनिक मनाकर चले जाते हैं या चले जाएंगे। राजनेताओं में वो विल पावर नहीं जो काम करा सके, चाहे सांसद मंत्री रह चुके पवन कुमार बंसल हों, 2 बार सांसद रही किरण खेर हों और अब बारी सांसद मनीष तिवारी की है। अब यह देखने वाली बात है कि इनके विल पावर में क्या है। इसी को लेकर हमने बात की चंडीगढ़ व्यापार मंडल के प्रधान संजीव चड्ढा और NTWB के मेंबर चरणजीव सिंह से, तो उन्होंने जो कहा आप हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहले सुनते हैं चंडीगढ़ व्यापार मंडल के प्रधान संजीव चड्ढा से और फिर सुनेंगे चरणजीव सिंह को। आज आपने बिल्डिंग बायलॉज के ऊपर बात कर रहे हो। बिल्कुल। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਲਟੀ ਜਿਹੜੀ 10 ਰੁਪਏ ਡੇਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕਦਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਪੈਨਲਟੀ 500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏਗਾ, ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ MHA ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਉਣੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ MHA ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ, ਜੇ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ MHA ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ 200 ਰੁਪਏ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਫਿਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁੱਦਾ ਲਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਥਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਕੇਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਨਲਟੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ, ਪੈਨਲਟੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਆਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਿਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾसन ਮਿਲਿਆ कि 2-3 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ समाधान निकलेगा। आश्वासन पर आश्वासन है चरणजीव जी, जिस तरह से कोर्ट में तारीख पर तारीख है, यहाँ आश्वासन पर आश्वासन है और मुझे लगता है कि कई सालों से है। आप लोग लगातार मांग करते आ रहे हैं लेकिन कोई समाधान अब तक नहीं निकला है। आप नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के मेंबर भी हैं, क्या इस लेवल पर कभी बात उठी है कि किस तरह से चंडीगढ़ के व्यापारी परेशान हैं? करोड़ों रुपए का जुर्माना भेजा जा रहा है, लाखों रुपए का तो आम बात है, 15 लाख 20 लाख तो आम बात है, करोड़ों रुपए, करोड़ रुपए, एक व्यक्ति पर करोड़ रुपए का जुर्माना, ये कहाँ तक सही लगता है और कहाँ तक जिसकी प्रॉपर्टी ही करोड़ की नहीं वो करोड़ का कहाँ से दे देगा जुर्माना? ऐसे है जी, ये जो बिल्डिंग बायलॉज का
जो इशू है ये स्टेट सब्जेक्ट है और ये इसको ठीक करने की पावर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। तो ये जो बिल्डिंग बाई लॉज बने थे 1970 में बने थे, जब चंडीगढ़ शुरू में नवा बन रहा था तो उस समय बनाए गए थे बिल्डिंग बाई लॉज। तो हमने लास्ट वीक भी गवर्नर साहब से मुलाकात हुई थी, एक डेलीगेशन वहाँ गया था व्यापार मंडल का। तो सबसे पहले हमने यही डिमांड की थी कि एक कमेटी बनाई जाए जो सिर्फ व्यापारियों के मुद्दों पे डेलीब्रेट करे और उसमें व्यापारियों का भी में सहयोग मतलब पार्टिसिपेशन हो उस कमेटी में, ताकि जो चीज़ लोगों की यहाँ अब नीड बेस्ड जो चेंजेस हैं या ज़रूरत के अनुसार कुछ अपने दुकान के अंदर रहते हुए कुछ लोगों ने चेंजेस की हुई हैं, वो उनको रेगुलाइज कर दिया जाए आज के हालात को देखते हुए, आज की ज़रूरत को देखते हुए। तो उन्होंने हमें शासन तो दिया है कि हम इसको करेंगे। तो होता क्या है कि जब ये जो किसी को नोटिस आ जाता है कि आपने दुकान के अंदर थोड़ी बहुत चेंज कर ली है, पीछे एक रूम बनता है, पीछे एक आपने रूम बना लिया है या आपने कुछ पार्टीशन कर लिया है जैसे ग्रेन मार्केट में 20 फुट चौड़ी दुकान होती है, उसमें किसी ने 10 फुट की 2 दुकानें बना ली, उसको भी वायलेशन मानते हैं। ये है जब ये कंपाउंडेबल। तो इससे होता है कि जब नोटिस आ जाता है, नोटिस पे 3-4 महीने की डेटें पड़ती हैं, कभी 3 महीने, कभी 4 महीने, 3-3 साल, 4-4 साल नोटिस चलते हैं। और नोटिस के बाद जो व्यापारी है उसको ठीक कर लेता है, भाई जी हम जो है उसको ठीक करके इंस्पेक्शन हो जाती है और इन द मीन टाइम 3-4 साल निकल जाते हैं इस प्रोसेस में। तो उसके बाद ये भेज देते हैं एसडीओ बिल्डिंग ब्रांच में, भाई जी इसकी पेनल्टी करो कैलकुलेट। वो किसी की 15 लाख होती है, किसी की 40 लाख होती है। अभी रिसेंटली सेक्टर 20 की मार्केट है हमारी अपने ट्रिब्यून रोड में, वहाँ पर पेनल्टियाँ लगाई गई हैं और ऐसे काफ़ी लोगों को पेनल्टियाँ, एक हमारे व्यापारी हैं उनको 1 करोड़ 60 लाख की पेनल्टी लगी हुई है। अब सोचिए कि 1 करोड़ 60 लाख अगर जुर्माना भेज दिया जाए तो उस व्यापारी के पास क्या आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता रह जाता है क्या? बिल्कुल, उनको व्यापारी को नींद आनी बंद हो जाती है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता कि अपनी दुकान को या बिल्डिंग को या इंडस्ट्रियल प्लाट को बेच के उसके पैसे दे। मैंने अभी सुना है कि एक इंडस्ट्रियल एरिया में 6 करोड़ की पेनल्टी लगा दी गई है। तो इसको इमीडिएटली चेंज करने की ज़रूरत है। पेनल्टी को रैशनलाइज करना चाहिए। दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो जो पुराने कानून बने हुए हैं उसके लिए कमेटी बने, सबको सुन के उसके लिए अमेंडमेंट हो और ज़रूरत के अनुसार आज के दिन के ज़रूरत के अनुसार उसकी चेंजेस हो। सेकंड, ये जो पेनल्टी है इसको चंडीगढ़ प्रशासन एक रीज़नेबल सा अमाउंट किसी को 2 लाख 3 लाख की पेनल्टी लग जाए हर कोई दे देता है और उसको पेनल्टी को रैशनलाइज किया जाए ताकि लोगों को ये ना मजबूर किया जाए कि वो अपनी दुकान बेचें या जैसे आपने कहा अपनी आत्महत्या करें। ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए रीज़नेबल कुछ अमाउंट होना चाहिए। ये हमारी मांग है और हम अब इसको मांग को लेके पॉलिटिकल पार्टियों को भी मिलेंगे और प्रशासन को यदि द्वारा ज़रूरत पड़ी द्वारा भी मिलेंगे और इसको अच्छी तरह टेकअप करेंगे ताकि ये जो चल रहा है सिलसिला ये नहीं चलना चाहिए और जो केसेस हैं वो जल्दी ख़त्म होने चाहिए और ऐसे इसको चेंज होना चाहिए ताकि यदि किसी को पेनल्टी भी लगे तो रीज़नेबल सी लगे। प्रधान जी, दुख और दर्द दुलार से नहीं भागते और दूसरी बात कहते हैं कि माँ भी दूध तब पिलाती है जब बच्चा रोना शुरू करे। कहने का मतलब है कि हम क्या अपनी बात को, अपने हकूक़ को मांगने के लिए जो लोकतांत्रिक तरीका होता है, आंदोलन, प्रदर्शन, धरना, क्योंकि ये प्रशासन लगता नहीं कि आपकी समस्याओं को समाधान के लिए आया है, ये समस्या क्रिएट करने के लिए आया है। तभी 6 करोड़ का अगर कोई जुर्माना लगा दे तो हमें तो इससे यही लगता है कि ये क्रिएट करने के लिए आए हैं समस्या, ना कि समाधान के लिए। आप लोग कब रोएंगे? नहीं, चलो रोने वाली बात तो नहीं है, हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी आती है। पहली बात तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बोल दूं कि व्यापार मंडल को अपने हक की लड़ाई लड़नी आती है। जिस समय वो भी समय आएगा अगर धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे, 100% करेंगे। हमने आपके प्रोग्राम में देखा गवर्नर साहब बड़ी तारीफ़ कर रहे थे आपकी कि बहुत कई तरह की समस्याएं आए आप लेकर के जाते हैं और वो समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। किताबों को देख करके कई बातें करनी पड़ती है, लेकिन सवाल उठता है कि किताब देख देख करके हम कितना काम करेंगे। दूसरी बात कि गवर्नर साहब अगर कुछ करना ही चाहते हैं तो इसको लेकर के अब तक क्यों नहीं किया? कि अगर इस गवर्नर साहब को ही कोई कहे कि आपके ऊपर 6 करोड़ का जुर्माना लग गया, भगवान करे ना लगे उनको,
तो उनकी क्या स्थिति होगी, ये उनसे कभी पूछा है क्या आपने? नहीं देखो, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਮਧੂਕਰ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਨੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰੇ ਜਾਣ। ਬਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ 2-3 ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਨੀਡ ਬੇਸ ਚੇਂਜ। ਦੇਖੋ 1970 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਟ ਕੁਛ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੀਡ ਬੇਸ ਚੇਂਜ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੈਨੂਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਟ੍ਰਿਕਨੈਸ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰਿਕਨੈਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਲਾਨ ਕਰਨ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਫੀਲ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ 100% ਲੜਾਂਗੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ। बिल्कुल लड़ेंगे। आपने कहा कि हक हकूक़ की लड़ाई लड़नी चाहिए। व्यापारियों में आक्रोश है और आप मजबूरी देखिए, प्रशासन की कोई मजबूरी नहीं है, प्रशासन की मजबूरी है कि भगा दो इनको, इसीलिए पलायन भी हो रहा है। नहीं तो अगर ये समाधान चाहते तो हमें लगता है कि इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 2 से ही या 1 से भी 1200, 1400, 1500 व्यापारी ऐसे हैं जिन्होंने शिफ्ट किया है मोहाली, बद्दी और कहाँ कहाँ। कभी प्रशासन को शिफ्ट करते नहीं देखा हमने। जो जुर्माना व्यापारियों पे लग रहा है, क्या केंद्र सरकार को वही जुर्माना इन अधिकारियों, पदाधिकारियों यानी गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर, एडवाइज़र, होम सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, इन लोगों पे जुर्माना होना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि समस्या का कारण यही लोग हैं, तभी ये सालों साल से एक समस्या चल रही है और आप लोग वही समस्याओं का रटे रटाई बात आप लोग करते हैं, समाधान निकलता नहीं है। ये मांग कौन करेगा कि इनके ऊपर जुर्माना लगो? नहीं देखो, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 3-3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਡੀਪਲੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ 100% ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨੀਡ ਵੇ ਚੇਂਜ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਕਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬੂਥ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਡ ਬੇ ਚੇਂਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨੀਡ ਬੇ ਚੇਂਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਨੀਡ ਬੇ ਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ चंडीगढ़ का भला होना निश्चित है। चेयरमैन साहब, आप व्यापार मंडल के चेयरमैन भी हैं। ऐसी परिस्थिति में जब भी आपकी मीटिंग होती होगी नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के बीच में, क्या इस मुद्दे को आप लोग पीएमओ तक, एमएचए तक, अपने लेवल पर, ये नहीं कि प्रशासन जो वहाँ भेजे वही सही, आप लोगों ने कभी मिलने की कोशिश की कि ये तो प्रशासन यहाँ का
निठल्ला है या जो भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी इन्होंने कहा है कि ये 3 साल के लिए आते हैं, क्या काम कर पाते हैं। लेकिन एक कहावत भी है कि यहाँ जो भी प्रशासनिक अधिकारी आते हैं वो पिकनिक मना करके चले जाते हैं। ऐसे में आप लोग सीधे MHA से या PMO से क्यों नहीं मिल पाते? ऐसे जी, अभी ये नेशनल ट्रेडर वेलफेयर का बोर्ड का मेंबर मैं 4-5 महीने पहले बना हूँ। ये मुद्दे जो हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी इंडस्ट्रियल एरिया में FAR बढ़ाने की बात हो रही है, और ये मुद्दे ये हमारे व्यापारियों के लिए भी होने चाहिए, FAR बढ़े। और जैसे हम फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हैं, यहाँ पर हम यदि बिज़नेस कर लें तो उसका भी नोटिस आ जाता है। इसको भी रेगुलाइज होना चाहिए कि यदि कमर्शियल बिल्डिंग है तो कमर्शियल बिल्डिंग का कोई भी पार्ट है, सब कमर्शियल एक्टिविटी होनी चाहिए। तो ये इसका प्रोसेस तो यही है कि यहाँ से प्रशासन जो है वो इसको भेजे, और वहाँ से ये तो कुछ चीज़ें तो यहीं हो सकती हैं, कुछ चीज़ें तो बिल्डिंग बायलॉज की यहीं हो सकती हैं। यदि कोई एक्ट में अमेंडमेंट करनी है तो वहाँ जाने की ज़रूरत होती है। फिर भी यदि ज़रूरत पड़ी तो हमारे जो नेशनल चेयरमैन हैं, जो व्यापार ऑल इंडिया जो नेशनल ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड के, वो मतलब उनको भी कैबिनेट रैंक मिला हुआ है, उनके साथ जाके हम वहाँ पर भी अप्रोच करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी अप्रोच करेंगे कि जो जिस चीज़ों में ज़रूरत है एक्ट में अमेंड करने की, तो उनको वहाँ पर पार्लियामेंट में अमेंड कराया जाए, ताकि जो सुविधा है, जो लोगों को तंगी हो रही है, वो पार्लियामेंट का काम यही है कि जो लोगों की, जैसे अब हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, तो जो जिस चीज़ में तंगी हो रही है तो उस सुविधा के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए यदि किसी अमेंडमेंट करनी पड़ती है तो उसके हम अप्रोच वहाँ भी कर सकते हैं। आप कहते हैं कि ज़रूरत पड़ी तो हम जाएंगे, सालों साल से ये समस्या है, ज़रूरत कब पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने के लिए सीधे? तो हमने 2-3 दिन 5 दिन पहले गए थे गवर्नर साहब के पास, 1-2 महीने के लिए हम वॉच करेंगे। गवर्नर लेवल पर तो आज तक कोई समस्या समाधान आप लोगों का हुआ नहीं। देखिए, ये जो काम हैं जो चंडीगढ़ लेवल पे ही होने वाले हैं, इस पे पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, काम करने की विल की ज़रूरत है। तो ये जो चीज़ यहीं हो सकती है तो उसके लिए तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ से कहलाया जा सकता है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो यहाँ नहीं हो सकती, वो वहाँ होती हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम वहाँ भी टेकअप करेंगे। अब प्रधान जी, आपने कहा कि हम लड़ाई भी लड़ेंगे। हमें लगता है कि चंडीगढ़ शहर में 8-10 हज़ार से ज़्यादा व्यापारी हैं जो किसी न किसी तरह से त्रस्त हैं। क्यों ना हम 8,000 लेकर के वहीं पहुंच जाएं? जब हमारी यहाँ नहीं सुनी जाए तो हम दिल्ली ही क्यों ना पहुँचें? हिम्मत है कोई यहाँ के व्यापारियों में? जी, हिम्मत व्यापारियों ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਿੰਮਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਆਫਿਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੁਕਦੇ ਪਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲੌਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫਸੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ 100% ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕਿ 10,000 ਵਪਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, 40,000 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਵਪਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਮਿਲਾ ਕੇ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। और सभी परेशान हैं, सभी परेशान ने किसी न किसी गलों की। और मैं जिन्नी बारी भी गवर्नर साहब ਨਾਲ ਸਾਡੀ 21 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਡੀਪਲੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਮਿਲਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਉਮੀਦ ਬੜੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਟ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ उम्मीद तो दुनिया जिंदी है, पर मैंने लगता 2-4 महीने से मसले हल होंगे। चिरंजीव जी, प्रधान जी ने जो कहा आपने सुना। दूसरी बात है कि पहले 10 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से जुर्माना था, मुझे जो ध्यान है, पर डे के हिसाब से। MHA से जब संपर्क किया प्रशासन ने तो उनको 200 रुपये पर स्क्वायर फीट का हिसाब किताब लगा दिया। प्रशासन की बात तो तुरंत समझ लेता है MHA, लेकिन आप लोगों की जो भाषा है, आप जो डिमांड करते हैं, ये MHA को सुनाई नहीं पड़ती। इसका क्या कारण है? ऐसे है जी, इन्होंने कोई ये जो बढ़ाया किया था, इन्होंने MHA लेवल पे नहीं किया,
अपने लेवल पे अपने लेवल पे कर दिया। और वो इन्होंने ये जो अनऑथराइज तरीके से किया है, इसके लिए हमने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में डाली हुई है, पिटीशन डाली हुई है। और वहाँ पर उन्होंने ऑब्जर्वेशन भी की है अपने जजों ने कि जो आपने कैपिटल ऑफ पंजाब एक्ट के बाहर जाके आपने ये रूल्स बना दिए हैं जो आप नहीं बना सकते। यदि आपने कुछ करना है तो आप पार्लियामेंट से पास करा के उस MH जो एक्ट है कैपिटल ऑफ पंजाब एक्ट 1952 का, उसमें अमेंडमेंट कराइए, तब आप ले सकते हैं। वो हमें जल्दी उम्मीद है कि जो वहाँ हाई कोर्ट से भी फैसला हमारी फेवर में आएगा और ये सब जो पेनल्टियाँ लगी हुई हैं सब क्वैश हो जाएंगी। और दूसरा हम ये मांग करते हैं, जब आपने यही बात चलाई है कि जब तक कुछ कैपिटल ऑफ पंजाब एक्ट में अमेंडमेंट नहीं होती, जो उस एक्ट में लिखा हुआ है वही पेनल्टी लगाई जाए, वही पेनल्टी लगाई जाए। वही मैं कह रहा हूँ कि जो मनमानी है प्रशासन का, जो धक्काशाही है, यानी कि ये खाता ना वही, जो प्रशासन करे वही सही। इसके बाद भी व्यापारी यहाँ के चुप हैं। ये हाई कोर्ट आप ज़रूर गए हैं, लेकिन जब भी यहाँ पर कोई आता है, जैसे आपने कहा विल पावर हो, पॉलिटिकल विल पावर, आपको लगता है कि इस शहर में प्रशासन तो छोड़िए, प्रशासन के तो आप कहना ही क्या है, जो पॉलिटिकल लोग हैं, इसके पहले आपके किरण खेर आए, पवन कुमार बंसल आए, किरण खेर का तो 10 साल आपने देख लिया, अब मनीष तिवारी हैं। क्या पॉलिटिकल विल देख रहे हैं? कभी चर्चा हुई है इन चीज़ों पर मनीष तिवारी के साथ? देखिए जी, अभी बात तो वहीं आ गई कि हमने कोर्ट का रास्ता भी अपनाया हुआ है। जैसे चड्ढा साहब ने भी कहा, मैं भी इनसे सहमत हूँ कि हमें यदि बात अभी 1-2 महीने में नहीं होती तो हमें यदि दूसरा रास्ता, एजिटेशन वाला रास्ता भी अपनाना पड़े तो हमें वो भी उस पर चलना चाहिए, क्योंकि व्यापारियों की एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है, व्यापारियों को इससे बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो इसके बारे में भी विचार होगा, जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई जाएगी, उसमें सारा विचार करके उस पर सोचा जाएगा, आगे सोचा जाएगा। प्रशासन का धक्काशाही, व्यापारी चुप, व्यापार मंडल के प्रधान सामने बैठे हैं। नहीं, आप ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ नहीं कह सकते मधुकर जी, ਅਸੀਂ चुप गए हैं। चुप का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੈਨੂਨ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਜੈਨੂਨ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹਰ, ਚਾਹੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਾਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ अगर निगाह होती तो अभी तक समाधान हो गया होता। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੱਕ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਯੈਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਡ ਬੇਸ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੀਕ ਕਾਰਬੂਜਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਭੂਤ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੋਰਸ ਸਾਡੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੋਏ हैं। लगे हुए हैं। तो पॉलिटिकल विल के बारे में सभी लोग जानते हैं चंडीगढ़ शहर के। ये साफ़ सफाई वाली जगह है, ब्यूटीफुल सिटी, ब्यूटीफुल है। ऐसे में इस शहर में कुछ नहीं होगा। व्यापारियों की मांग तभी पूरी होगी जब ये चंडीगढ़ के बजाय दिल्ली की सड़कों पर दिखेंगे हज़ारों की संख्या में व्यापारी, तभी समाधान है। नहीं तो चंडीगढ़ प्रशासन के पास कोई खाता ना बही, जो वो लोग कहे वही सही। फिलहाल व्यापारी त्रस्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं ये लड़ाई की शुरुआत कब से होती है या होती भी है कि नहीं। धन्यवाद सर सभी का। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।